Students, in today's video session, I shall be discussing about accounting treatment of goodwill at the time of retirement of a partner. So before starting this topic, let us recall the chapter admission of a partner. एक बार हम उसी chapter पे फिर से जाते हैं. So in admission of a partner ऐसा होता था कि मान लीजिए कि दो partners हैं A and B. They are running a partnership business, but now they decide to admit even C as a partner. वो C को भी as a partner लेना चाहते हैं. तो उस केस में A and B अपने जो उनका प्रॉफिट का शेयर है उसमें से कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते थे इन फेवर ऑफ C. तो इस ढंग से C को उसका प्रॉफिट शेयर मिलता था A एंड B की सेक्रीफाइस से, A एंड B की कॉन्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ C से. तो what C has to do is C will compensate A and B for the sacrifice they have made by paying them goodwill. So that used to be in admission of a partner. अगर हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, now let's say A, B and C are partners in a firm and now C decides to retire. So now in this case C's share of profit will be taken up by A and B. अब जो C का जो प्रॉफिट शेयर है वो A and B टेकअप कर लेंगे, जिससे A and B का प्रॉफिट शेयर बढ़ जाएगा. So now I am reading from here. So at the time of retirement of a partner, retiring partner's share of profit is taken by the continuing or remaining partners. अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है C, C's share of profit is taken by A and B. Now what will happen? The continuing partners then compensate the retiring partner in the form of goodwill contributed in their gaining ratio. एडमिशन के केस में कौन सी रेशियो होती थी? Sacrificing ratio. तो जो continuing partners हैं, जैसे in our example these are A and B, so they will compensate retiring partner. Retiring partner is C. So A and B will compensate C in the form of goodwill because A and B are gaining. Because C's share is also taken up by A and B. तो वो उसको कैसे compensate करते हैं C को? They will pay him in the form of goodwill. So value, अब it means ये हुआ कि it is a case of reconstitution of a partnership. ठीक है, जितने भी केसेस होते हैं reconstitution of partnership, they can be change in profit sharing ratio as we did, admission of a partner, retirement and death of a partner. So in all these cases we do the valuation of goodwill, and the value of goodwill is determined as per the terms of partnership agreement or as agreed among the partners. तो इन केसेस में हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, गुडविल को फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है. सो अब हम इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं. तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? जो हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे इनटू रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट. सो दिस इज हाउ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी डिटरमिन्ड. मान लीजिए कि हमने फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की 2,50,000 और रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है 1/5. तो रिटायरिंग पार्टनर गुडविल का शेयर कितना आ जाएगा? 2,50,000 इंटू 1/5. तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, शेयर ऑफ गुडविल आ गया रिटायरिंग पार्टनर का 50,000 रुपीज. सो इट मस्ट बी नोटेड दैट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दैट इज रिलेटिंग टू intangible assets, self-generated goodwill is not recognized in the books of account, and only which goodwill is recognized, which goodwill is written, only purchased goodwill is accounted for. So ये जो हमने value of goodwill निकाली है in case of
जो हम कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ admission and retirement and death of a partner, so that is what goodwill, that is not purchased goodwill, right? So that goodwill is not recognized in the books of accounts because it is not purchased goodwill. So at the time of retirement of a partner, तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जो भी हमने ये जो गुडविल का फॉर्मूला लिखा है, रिटायरिंग पार्टनर की हमने गुडविल का शेयर निकाल लिया, अब हमने इसका करना क्या है? सो दैट गुडविल मे बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, बिकॉज वी डोंट हैव टू ओपन गुडविल अकाउंट. हमें गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है. हमें गुडविल अकाउंट को खोले बिना, गुडविल अकाउंट को ओपन किए बिना उसकी एडजस्टमेंट करनी है. तो वो कैसे होता है? सो गुडविल मे बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देयर कैन बी टू केसेस. व्हेन गुडविल, फर्स्ट केस इज व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड सेकेंड केस व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. जब गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो कौन सी गुडविल होती है? दैट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. वो कौन सी गुडविल होती है व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट? जनरली इट इज परचेज्ड गुडविल. ओके, द गुडविल दैट इज ऑलरेडी existing in the books of accounts is purchased goodwill. Okay, so we'll start with case 1, that is when goodwill does not exist in the books of account. So let us come to this case. In this case, when goodwill does not exist in the books of account, in this case, retiring partner's capital account is credited with his share in the current value of goodwill of the firm, because retiring partner is getting his share of goodwill, so his capital account will be credited and the remaining partner's capital account will be debited, because they are paying him it for compensating the retiring partner. And it will be done in which ratio? It will be done in gaining ratio. So the journal entry passed. This journal entry is very very important. The journal entry क्या है? The journal entry passed under this method is gaining partner's capital account debited to retiring partner's capital account. And in which ratio? It is in gaining ratio. So let us understand it through an example. Let us take an example. Now Ajay, Bhaskar and Chandan, they are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2:1. ये तीन partners हैं, अजय, भास्कर and चंदन. इनकी profit sharing ratio है 3:2:1. Now this Bhaskar, he decided to retire from the firm. He retired and the goodwill of the firm. अब देखिए, रिटायरमेंट के केस में मतलब इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन. जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है हमें गुडविल को वैल्यू करना ही पड़ता है. तो एट द रिटायरमेंट ऑफ भास्कर द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,80,000. नाउ अजय एंड चंदन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. अब देखिए, जो ये रेशियो दे रखी है 3:2:1, इट इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब भास्कर के रिटायर होने के बाद अजय एंड चंदन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 3:2. सो दिस इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा है. तो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का? इट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. So now let us move towards the solution. सबसे पहले the very first step is we have to calculate retiring partner. Retiring partner कौन है? भास्कर. उसका share of goodwill कितना है? अब देखिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल. फर्म की गुडविल की वैल्यू ये देखिए 1,80,000 हमें दे रखी है, इनटू रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट.
अब देखिए उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1। 3:2:1 में भास्कर का शेयर कितना था? 2 था एंड टोटल शेयर इज 6। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमने भास्कर के शेयर ऑफ गुडविल निकाला, तो 1,80,000 इंटू 2/6। तो भास्कर को कितना शेयर ऑफ गुडविल दिया जाएगा? 60,000। ही विल बी इंटाइटल्ड टू ₹60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड। अभी 60,000 भास्कर को कौन देगा? इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? अजय एंड चंदन। तो अजय एंड चंदन विल compensate Bhaskar by paying him his share of goodwill in their gaining ratio. So, अब 60,000 rupees 60,000 will be debited to continuing partners capital account in their gaining ratio. अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? बिकॉज हमारे पास गेनिंग रेशियो नहीं है, हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। नाउ स्टेप 2 इज कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले हमने रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाला। स्टेप 2 में हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की। गेनिंग रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब अजय की न्यू रेशियो क्या है? 3/5 बिकॉज 3:2 उनकी रेशियो है। तो अजय का शेयर कितना है? 3/5 न्यू शेयर एंड उसका ओल्ड शेयर कितना था? 3:2:1 में 3/6 था। तो इस तरह से अजय का गेन कितना आ रहा है? अजय विल गेन बाय हाउ मच? 3/30। एंड इसी तरह से हमने चंदन का भी गेन निकाला, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 1/6। सो चंदन विल गेन बाय 7/30। तो उनकी जो दोनों की गेनिंग रेशियो आ गई दैट इज 3:7। तो नाउ दे विल contribute in the ratio of 3:7 in payment of goodwill to who is going to retire? भास्कर। तो अजय की कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? अजय की कंट्रीब्यूशन आएगी 3:7 में 3/10। 3/10 ऑफ 60,000। 60,000 में से 3/10 यानी कि 18,000 rupees will be paid by Ajay and Chandan will pay 7/10 of 60,000। तो चंदन की कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? 42,000। तो आपको जर्नल एंट्री बताई मैंने। जर्नल एंट्री क्या होती है? दैट इज गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, मीन्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ गेनिंग पार्टनर्स आर अजय एंड चंदन। तो अजय's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 18,000। ये 18,000 कैसे आया? इट इज 3/10 ऑफ ₹60,000 एंड चंदन कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 42,000। अब ये 42,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया था? ये कैलकुलेट किया था 7/10 ऑफ 60,000 टू भास्कर कैपिटल अकाउंट। अब हमने भास्कर को 60,000 देने हैं, वो हमने दे दिए। किस रेशियो में दिए? किस रेशियो में कंट्रीब्यूट किया अजय और चंदन ने? अपनी गेनिंग रेशियो में, और उनकी गेनिंग रेशियो है 3:7। तो इसकी यही जर्नल एंट्री होती है, एक ही जर्नल एंट्री होती है व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट कि इन द बुक्स। तो उसमें एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो जर्नल एंट्री इज गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। अब हम सेकेंड केस लेते हैं। द सेकेंड केस इज व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में, एसेट साइड पर लिखा हुआ है गुडविल, इसका मतलब वो परचेज्ड गुडविल है और उसको हमने राइट ऑफ करना है। जो परचेज गुडविल होती है, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही होती है बुक्स में, उसको राइट ऑफ करने का एक ही
तरीका होता है, और उसके लिए हमें याद रखना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, that is to be written off among old partners between old partners in their old profit sharing ratio. ठीक है, तो अब old partners कौन थे? A, B and C, तो तीनों, क्योंकि ये already existing goodwill है, so ये उन तीनों में write off होगी. That is to be written off, I already explained, old partners in their old ratio. ठीक है, तो अगर जो भी गुडविल एग्जिस्ट कर रही होती है बुक्स में, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है. तो यहां पर लिखा हुआ है दैट इज इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर. सो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज परचेज्ड गुडविल. इट इज रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो द जर्नल एंट्री इज, अब हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे. गुडविल एक एसेट है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब हम उसको राइट ऑफ करेंगे तो हम उसको खत्म कर रहे हैं ना, उसको अब हमने बुक्स में शो नहीं करना, उसको हम वी आर राइटिंग इट ऑफ. तो उसके लिए गुडविल क्रेडिट हो जाएगी. तो एंट्री विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ऑल पार्टनर्स मीन्स ओल्ड पार्टनर्स में रिटायरिंग पार्टनर भी बीच में. All partners capital account debited to goodwill account in the old ratio. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, ये जो हमें करनी पड़ेगी when goodwill already exists in the books. ये एंट्री, फर्स्ट एंट्री ये होगी. और सेकेंड एंट्री सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम जो हमने ऊपर वाले केस में फॉलो किए थे when goodwill does not exist. बस द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स क्या है? ठीक है, सो देखिए, द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ द केसेस इज दैट इफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स देन इट हैज टू बी रिटन ऑफ फर्स्ट इन ओल्ड रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स. अब देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. नाउ द एग्जाम्पल गोज ऑन लाइक दिस. X, Y and Z are partners. They are sharing profits in the ratio of 3:2:1. ये तीन पार्टनर्स हैं, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है. अब लिखा है गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹60,000. तो इट मीन्स दिस द गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स एट ₹60,000. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाई रिटायर्स. अब XYZ में से वाई रिटायर हो रहा है एंड एट द टाइम ऑफ वाईज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹84,000. अब आपको इन दोनों वैल्यूज में 60,000 और 84,000 में कंफ्यूज नहीं होना है. जो गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स में दैट इज 60,000. अब वाई रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब जब भी कोई भी पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है. तो ये जो 84,000 हमें दे रखा है, ये वो वैल्यू है जो तब कैलकुलेट की गई when Y retires. So Y retires and at the time of Y's retirement goodwill is valued at ₹84,000. This is that goodwill. और जो ये 60,000 की वैल्यू दे रखी है, it is the goodwill that is appearing on the asset side of the balance sheet. Now after that it is given X and Z decided to share future profits in the ratio of 2:1. X and Z ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:1 में शेयर करेंगे. तो इट मीन्स दिस इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. देखिए, सिंपल सी बात है, द सोल्यूशन विल बी डन इन सिंपल वे, दैट इज बाय पासिंग ओनली 2 जर्नल एंट्रीज. द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल. जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, हमने उसको राइट ऑफ करना है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. तो एंट्री क्या होती है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. ऑल पार्टनर्स दैट इज X, Y एंड Z. विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. सो X इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000, क्योंकि 60,000 को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो 60,000 को हमने 3:2:1 में डिवाइड कर दिया. तो X इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000, Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000 and Z is capital account debited 10,000 to goodwill account
60,000। तो पहले हमने उस जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको अब हमने सबसे पहले उसको राइट ऑफ किया। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड एंट्री क्या होगी, सिंपली गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल का शेयर। तो रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल शेयर क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 84,000 इंटू रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। 3:2:1 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या था, 2/6। तो फर्म्स गुडविल इंटू रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, तो वाई का शेयर कितना आ गया गुडविल का, इट कम्स आउट टू बी ₹28,000। नाउ दिस 28,000 will be contributed by remaining partners, that is X and Z, in their gaining ratio। और हम क्या बोल सकते हैं कि X and Z will compensate Y in their gaining ratio। वो उसको अपनी गेनिंग रेशियो में कॉम्पनसेट करेंगे। कितना रुपीज कितनी पेमेंट देंगे वो गुडविल की फॉर्म में, दे विल पे हिम ₹28,000। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब x का गेन कैसे कैलकुलेट होगा, x की न्यू रेशियो क्या है, x और z की न्यू रेशियो है 2:1। तो x का शेयर उसमें है 2/3 और उसका ओल्ड शेयर है 3/6। तो इस तरह से x का गेन कितना आ गया, 2/ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, वो आ गया 1/6। Similarly, we calculate Z's gain, that also comes out to be 1/6. The gaining ratio comes out to be, as it is same, both of them have gained with the same ratio, so their gaining ratio comes out to be 1:1. So simply this 28,000 will be given to Y by equal contribution from X and Z. So the journal entry passed will be 28,000 को हमने हाफ डिवाइड कर देना है, बिकॉज देयर गेनिंग रेशियो इज 1:1। तो गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स आर X and Z। So gaining partners capital account debited to retiring partners capital account। तो X is capital account debited 14,000, Z is capital account debited 14,000 to Y's capital account। So in this way the second entry remains the same in both the cases। The only difference is when goodwill already exists in the books of account, then what has to be done is it has to be written off among old partners in their old profit sharing ratio। So that is how we have solved this। ठीक है, we have done the accounting treatment in both the cases when goodwill does not exist in the books and when goodwill exists in the books। Okay, now there can be another case that is called hidden goodwill। अब उस केस में हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज इन दिस केस द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड टू retiring partner is not specifically mentioned. We have to infer it, we have to find it out, we have to imply। हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें उसको फाइंड आउट खुद से करना पड़ता है, हमें स्पेसिफिकली नहीं दिया होता। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो उसकी गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर को हमने गुडविल देनी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल ओनली, बिकॉज इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। नाउ लेट्स से देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C and they are sharing profits in the ratio of 1:2:3। Now C retires, okay, and his capital after making adjustments of reserves and gain ऑन रेवोल्यूशन, तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है आफ्टर गिविंग हिम शेयर ऑफ रिजर्व्स, आफ्टर गिविंग हिम हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
तो जो उसकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है दैट इज 2,20,000, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग, तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स दैट वी हैव टू पे rupees 2,20,000 to C, but A and B agreed to pay him rupees 2,50,000 in full settlement of his claim. इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस है between these two amounts, because A and B have agreed to pay him rupees 2,50,000, not 2,20,000. So the difference in these two amounts is called hidden goodwill. Okay. So, the next line is pass necessary journal entry for the treatment of goodwill if new profit sharing ratio is decided at 1:3. So, rest everything will be the same, the journal entry will remain the same, but the first thing that we have to infer, that we have to calculate is the amount of goodwill. That is the only difference. Okay, because the amount that has been paid to him is 2,50,000, whereas his capital account showed a balance of 2,20,000, balance carried down. So the difference between these two amounts is due to goodwill. So that is the hidden goodwill. So the next steps will remain the same. We will be calculating gaining ratio and we will be passing journal entry, that will be gaining partners capital account debited to retiring partners capital account. Now let us see the solution. So it is here, first of all, amount agreed to be paid to C is in full settlement is 2,50,000, whereas C's capital after adjustments is given 2,20,000. So it means C's share of goodwill is rupees 30,000. So remaining steps will remain the same. We will be calculating gaining ratio. So gain of A will be, gaining ratio is calculated by new ratio minus old ratio. So the new share is, what is the new share? New profit sharing ratio will be given. It is 1:3. So 1/4 minus old share, that is 1/6. So it is 1/12, and gain of B 3/4 minus 2/6. So अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, the gaining ratio comes out to be 1:5. Now this 30,000 C's share of goodwill will be given to him by A and B in the ratio of 1:5. It means A will contribute 1/6 of 30,000, that is 5,000, and B will contribute 5/6 of 30,000, that is 25,000. So what will be the journal entry? A's capital account debited, gaining partner to retiring partner. Gaining partner's capital account debited. A's capital account debited rupees 5,000. B's capital account debited rupees 25,000 to C's capital account, that is 30,000. So this is how we have to pass journal entries in case of goodwill valuation in case of retirement of a partner. So let us revise all the cases precisely. So in case of retirement of a partner, goodwill is taken up in the form of two cases: when goodwill does not exist in the books of account, and other cases when goodwill exists in the books of account. When goodwill does not exist in the books of account, only one journal entry is passed, that is gaining partners capital account debited to retiring partners capital account, right? So in this case, the journal entry is passed with what amount? It is passed with the retiring partner's share of goodwill, number one, and in what ratio? It is passed in gaining ratio. So firstly we have to calculate retiring partner's share of goodwill. तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने का, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल
मल्टीप्लाइड बाय रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वहां से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। और द सेकेंड स्टेप इज टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड गेनिंग द फॉर्मूला न्यू रेशियो और न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस we calculate the amount to be contributed by the remaining partners. Okay, so the journal entry passes gaining partners capital account debited to retiring partners capital account. And the other case, when goodwill already exists in the books of accounts, then firstly the already existing goodwill, it has to be written off among the old partners in the old ratio. So old partners capital account, old means all partners capital account debited to goodwill account. So it means the goodwill is written off by passing this journal entry, and the second entry remains the same, that is gaining partners capital account debited to retired partners capital account. Alright, so this was the accounting treatment of goodwill in case of retirement of a partner. It is clear to you and you understood it. Thank you so much.